آج ہم دنوں رات رمضان کا ختم ہونے کے بعد ہی ہم حسد شروع کر دیتے ہیں، اپنے دوسرے بھائی سے بغض رہتے ہیں، جس سے رمضان سے پہلے ہم ایک دوسرے سے بات کر تھی، ایک دوسرے سے باتیں نہیں کیا کرتے تھے، رمضان کے بعد پھر وہی معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ عید ہمیں یہ درس دیتی ہے، عید کا جو دن ہے یہ ملاقات اور ملنے جلنے کا، ایک دوسرے سے گلے مل کر ایک دوسرے کے گناہوں کو، اجتماعی غلطیوں کو معاف کرنے کا دن ہوتا ہے، جو اللہ رب نے درس دیتے یہ بتلانا چاہتا ہے کہ ہم نے تمام مسلمانوں کو ایک جگہ ایک حصہ میں جمع کر دیا۔ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ تم تمام کے تمام مومن ہو، تمام کے تمام بھائی ہو، لہٰذا کسی کی غیبت نہ کرو، کسی سے حسد نہ رکھو، کسی سے بغض نہ رکھو، یہ تم پر عائد ہوتا ہے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا، كذلك الخروج، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ حاضرین اجتماع، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین اسلامی خواتین، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، جو کہ تن تنہا تمام کائنات کا اکیلا خالق، مالک اور رازق ہے،
लिहाजा उसके भेजे हुए तमाम नबियों, रसूलों और पैगम्बरों पर दुरूद और सलाम नाज़िल हो। खुसूसन उसके आखिरी नबी रहमतुल आलमीन शाफिउल मुस्लिमीन अहमद मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। हज़रात किराम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी अभी हम लोग रमजान के बाबरकत महीने से निकले हैं। कुछ ही दिन पहले हम लोग रमजान के बाबरकत अय्याम से मुस्तफीद हो रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत के महीने से गुजर रहे थे, लेकिन अब हम उससे निकल चुके हैं। लेकिन अगर हम इसके पेश नजर अपने मुआशरे का हाल देखें, नौजवानों के किरदार को देखें और अपने मुआशरे में उठने बैठने वालों के हालात को देखें, अहवाल को देखें, तो क्या मालूम होता है कि ऐसा लगता है कि रब की इबादत सिर्फ एक महीने के लिए फर्ज हुई थी। अपने आमाल को दुरुस्त रखना, अपने अहवाल को सही रखना सिर्फ एक महीने के लिए था, जो कि सरासर रब्बुल आलमीन के फरमान के आयन खिलाफ है। लिहाजा इसी के पीछे नजर मैंने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है रमजान के बाद मुसलमानों का हाल। हज़रात किराम, हम देखते हैं रमजान जब आता है तो उसके अंदर हमारे अंदर एक इबादत करने के जोश और जज्बा पैदा होता है, एक वलोला पैदा हो जाता है, जिसकी पेश नजर हम मसाजिद में जमा होते, नमाजों को पढ़ते हैं और नमाज ही नहीं बल्कि दीगर और जितनी भी इबादतें हो सकती है, चाहे नवाफिल हो, चाहे वो जिक्र-ओ-अस्कार हो, चाहे वो कुरान की तिलावत हो या फिर किसी भी सूरत में हो, अक्सर मुसलमान ये सोचते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें और अल्लाह के मुत्तकी बंदे बन जाए, अल्लाह के मोमिन बंदे बन जाए। लेकिन जैसे ही रमजान से निकलते हैं हम तमाम चीजों पर तलाक दे देते हैं, हम तमाम चीजों को कुल्ली तौर पर छोड़ देते हैं, हालांकि सरासर हमारे इबादतों के भी खिलाफ है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो कहता है कि मोमिन बंदे वो है जो अपने आमाल पर दवाम बरतते हैं, जो अपने अमाल को मुसलसल करते रहते हैं, ये है असली इबादत। और रमजान की कबूलियत की सबसे अहम चीज अगर हमें नोटिस करना है और हमें जानना है कि हमारी इबादत कबूल हुई या नहीं हुई, तो हमें ये देख लेना चाहिए कि हमारा रमजान के बाद क्या हाल है। हम रमजान के बाद भी रब की इबादत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? रमजान के बाद भी हमारे अंदर इताअत है कि नहीं, फरमाबरदारी है कि नहीं, या फिर सिर्फ और सिर्फ नाफरमानी भरी पड़ी है। रमजान के अंदर जो तमाम मकासद थे, जो फवायद थे, उसको हमने हासिल किया है कि नहीं? रमजान का सबसे अहम मकसद जो था वो है तकवा। क्या हमने हकीकी मानों में रब का तकवा इख्तियार कर लिया है? अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम डरने वाले बंदे बन चुके हैं। अल्लाह रब्बुल कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। रब्बुल आलमीन कहता है कि ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, जितने भी इस दुनिया के अंदर ईमान वाले हैं सभी को अल्लाह रब्बुल आलमीन मुखातब कर रहा है और कह रहा है, ऐ ईमान वालों, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो। सिर्फ एक महीने के लिए नहीं, सिर्फ 2 महीने के लिए नहीं, सिर्फ शव्वाल, ज़िल्हिज्जा या सिर्फ रमजान के लिए नहीं, सिर्फ मुहर्रम के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल कह रहे जैसा उससे डरने का हक है, जैसा कि तक़वा इख्तियार करने का हक है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक तो ये है हम साल के 12 के 12 महीने मुत्तकी बंदे बने रहे, मोमिन बंदे बने रहे। लेकिन इस बात को याद रखिए, अगर हमने इबादत को, तकवे को और इसी तरीके से नमाज रोजे को एक महीने के लिए खास कर लिया तो समझ लीजिए हमारे ईमान में कमजोर हुई, हम मुकम्मल तौर पर मोमिन बने ही नहीं है, जिसके नतीजे में हम एक महीने की इबादत तो कर लेते हैं लेकिन फिर रमजान के बाद ही हमारे तमाम वो चीजें जाहिर होने लगती हैं जो कि रमजान से पहले हुआ करती थी। तो मालूम क्या हुआ, अगर हम अपनी इबादत को कबूल करवाना चाहते हैं तो हमें रमजान के बाद भी इबादत मुसलसल उसी तरीके से करना चाहिए जिस तरीके से हम रमजान में किया करते थे। हाँ, ये अलग चीज है, हम तिलावत कुरान, जिक्र अस्कार, नवाफिल बहुत ज्यादा पढ़ा करते थे तो उसमें कुछ कमी कर सकते हैं, लेकिन फराइज से कोई कंप्रोमाइज नहीं चलेगा। फराइज के मुतालिक, फर्ज नमाजों के मुतालिक हम ये सोचें कि एक रोज पढ़े 4 रोज छोड़ दें या फिर कुल्ली तौर पर पढ़े ही नहीं, ये तो सरासर अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमान के खिलाफ है।
अल्लाह कुरान करीम के एक मिसाल देते हुए फरमाता है, वला तकूनु कल्लती नक़दत गज़लहा मिन बादि क़ुव्वतिन अंकासा। अल्लाह कह रहा है, गौर से सुनिए माँ बहनों, आप लोग भी सुनिए। अल्लाह कह रहा है कि वला तकूनु कल्लती, कि ऐ लोगों तुम लोग उस औरत की तरह न हो जाना। तमाम लोगों ने मुखातब कह रहा है, वला तकूनु कल्लती नक़दत गज़लहा, कि ऐ लोगों तुम लोग उस औरत की तरह न हो जाना जो कि दिनों रात मेहनत करती है, मेहनत करने के बाद सूत काटती है। एक चीज होता है जब सूत काट के बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, कि जो दिनों रात मेहनत करके एक कपड़े को, एक सूत को तैयार करती है, जिसके बाद वो क्या करती है, जब मुकम्मल तैयार हो जाता है तो उसे कैंचियों से कतर देती है, पूरे दिन भर की मेहनत को एक ही वक्त में बर्बाद कर देती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहना चाह रहा है कि अगर हम एक महीना मुसलसल इबादत करते हैं, नमाजों को पढ़ते हैं और इसी तरीके से सदका तो खैरात करते हैं, जिक्र अस्कार करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, लेकिन फिर मेरे भाइयों, मेरे माओ बहनों, अगर रमजान के बाद हमारी नमाजें गायब हो जाती हैं, हमारी इबादतें गायब हो जाती हैं, कुरान को हमने ताक पर सजा कर रख दिया है, हमें अब साल में खोलने की जरूरत महसूस नहीं करते हैं, तो इस बात को याद रखिए हमने रब के फरमान के खिलाफ किया है। और हम अल्लाह क्या कह रहे हैं, तुम लोग उसी औरत के बारे में हो जिसने पूरे अपने सामान को बर्बाद कर दिया। इसी तरीके से हमारी इबादतें भी गारत से बर्बाद हो सकती है। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हमारे रमजान की इबादतें जो दिनों रात मुसलसल मेहनत के बाद हम करते हैं, ये सोच कर के रब्बुल आलमीन हमारी मग़फ़िरत कर देगा, रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ कर देगा, तो मेरे भाइयों अगर रमजान के बाद बेनमाजी हो जाते हैं, मसाजिद को वीरान छोड़ देते हैं, तो इस बात को याद रखिए हमने अपने रब के साथ वफा नहीं किया है। हमने तो रस्मी तौर पर रमजान के लिहाज से मस्जिद के अंदर चले आते हैं ताकि लोग देखने वाले ये न कहें जो कि रमजान का भी लिहाज नहीं कर रहा है, रमजान के अंदर भी नमाज नहीं पढ़ता। अगर हम सिर्फ रमजान के लिए आते हैं, रस्मी तौर पर आते हैं, तो ये दिखावा है, और दिखावा किसी काम का नहीं, हमारे मुंह को मार दिया जाएगा। तो लिहाजा मेरे भाइयों, हमें जरूरत है अपनी नमाजों को और इसी तरीके तकवे को उसी तरीके से बरकरार रखें जिस तरीके रमजान में था। और दूसरी चीज, हमारे अंदर सिर्फ इबादत के मुतालिक कमी नहीं आती है, बल्कि सबसे बड़ा असर हमारे इसी तरीके से निजी जिंदगी, कारोबारी जिंदगी, अखलाकियात और दीगर बहुत सारी चीजों के अंदर ऐसा बदलाव आता है, ऐसा इख्तलाफ पैदा होता है कि देखने वाले ये तस्वुर न कर सके कि जो बंदा रमजान के अंदर एक झूठ बोलने से डरता था, दोस्तों को धोखा देने से डरता था, दोस्तों को के साथ बेईमानी करने से डरता था, रमजान की बात फिर वही सच इस तरीके धोखाधड़ी, फरेब, धोखेबाजी, इसी तरह गीबत, चुगली, हसद, ये सारी चीजें कैसे आ गई मेरे भाइयों। इस बात को याद रखिए अगर रमजान के बाद ये सारी चीजें हमारे अंदर आ जाती हैं, तो इस बात को याद रखिए कि हमने हकीकी माने में तक़वा इख्तियार ही नहीं किया, हमने अपने दिलों के अंदर अल्लाह का डर पैदा ही नहीं किया, जिसके नतीजे में आज ये हो रहा है। आज हम दिनों रात रमजान का खत्म होने के बाद ही हम हसद शुरू कर देते हैं, अपने दूसरे भाई से बुग़्ज़ रखते हैं, जिससे रमजान से पहले हम एक दूसरे से बात कट थी, एक दूसरे से बातें नहीं किया करते थे, रमजान के बाद फिर वही मामला शुरू हो जाता है। हालांकि ईद हमें ये दर्द देती है, ईद का जो दिन है ये मुलाकात और मिलने जुलने का, एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे के गुनाहों को, इसी गलतियों को माफ करने का दिन होता है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दर्द देते ये बतलाना चाहता है कि हमने तमाम मुसलमानों को एक जगह एक हिस्सा में जमा कर दिया। ये इस बात की निशानदेही है कि तुम तमाम के तमाम मोमिन हो, तमाम के तमाम भाई हो, लिहाजा किसी की ग़ीबत न करो, किसी से हसद न रखो, किसी से बुग़्ज़ न रखो, ये तुम पर आयत होता है। लेकिन हमारा मामला क्या है? हमारा मामला बिल्कुल उसके बरअक्स है। हम एक दूसरे की हसद भी करते हैं, एक दूसरे से दुश्मनी भी रखते हैं, एक दूसरे से फसद ताल्लुकी भी करते हैं। हालांकि अल्लाह के नबी का फरमान सुनिए, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तहासदू वला तबागदू वला तनाजसू वला तदाबरू वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना। अल्लाह के नबी कहते हैं कि ऐ लोगों, तुम लोग एक दूसरे से हसद न करो, एक दूसरे से धोखेबाजी न करो, एक दूसरे के साथ बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी न रखो। इसी तरीके से एक दूसरे को देखकर मुंह फेर कर मत भागो, फसद ताल्लुकी मत करो, बल्कि वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, तुम सब के सब जितने भी यहाँ बैठे हुए हो और जितने भी दुनिया के मुसलमान हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, तमाम के तमाम भाई भाई हो, लिहाजा तुम लोग भाई भाई बन के रहो। एक दूसरे के साथ हसद, जलन, बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी, ये सारी चीजें शैतानी चालें हैं जो हमें अल्लाह से दूर कर रही हैं, जो हमें एक दूसरे मुसलमान भाई से दूर रख रही है।
हालांकि अगर हम देखें सहाबा कराम से इतनी मोहब्बत थी जो हमें इस बात से दर्द देती है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को किस तरीके से रहने, एक मुसलमान से दूसरे मुसलमान का क्या हक होना चाहिए। अल्लाह के नबी कहते हैं वला यक़्तुलुहु वला यहक़िरुहु अत्तक़वा हाहुना। अल्लाह के नबी आगे फरमाते हैं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर जुल्म न करे, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को हकीर न समझे, उसको कमतर न समझे, एक दूसरे का मजाक न बनाए, बल्कि एक दूसरे के साथ हमदर्दी मोहब्बत उल्फत के साथ रहे। ये हमें इस्लाम दर्द देता है। ये नबी अलैहि सलाम की हदीस बताती है कि एक दूसरे के साथ हमदर्दी के साथ रहो, दूसरे का मजाक मत बनाओ। अगर अल्लाह ने किसी को रुतबा दिया है, किसी को पैसा दिया है, तो कोई किसी से बड़ा नहीं हो जाता है। रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह हुजरात के अंदर, फरमाते हैं कि या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल। अल्लाह के नहीं फरमाते हैं कुरान के साफ अल्फाज है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम दुनिया के लोगों को मुखातब कर रहा है और क्या कह रहा है, सुनिए कि ऐ दुनिया जहां के लोगों सुनो, इन्ना खलक़नाकुम, हमने तुम्हें पैदा किया, मिन ज़करिन व उन्सा, एक मर्द और एक औरत से। हमने तमाम दुनिया वालों को एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, और फिर उसके बाद हमने अलग अलग कबीले, अलग अलग खानदान, अलग अलग शोबों में पैदा कर दिया। यानी किसी को खान बना दिया, किसी को अंसारी बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों बनाया? इसलिए नहीं कि हम एक दूसरे को हकीर समझे, एक दूसरे को कमतर समझने लग जाए, मजाक बनाने लग जाए। या फिर इसी तरीके से अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को ज्यादा माल और दौलत दिया है, किसी को कम दिया है, तो किसी को किसी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। रब्बुल आलमीन फरमा रहा है इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। रब्बुल आलमीन कह रहा है कि अगर किसी को किसी पर फजीलत हासिल है, किसी को किसी वजह से अफजलियत है, किसी को किसी की वजह से बरतरी हासिल है, किसी को मकाम मर्तबा और रुतबा और शोहरत हासिल है, वो है तकवा, वो है अल्लाह के लिए दिल में डर का पैदा हो जाना। रब्बुल आलमीन कह रहा है किसी काले को किसी गोरे पे कोई फजीलत हासिल नहीं है, किसी अमीर को किसी गरीब पे फजीलत हासिल नहीं है, बल्कि इस दुनिया के अंदर रहने वाले तमाम के तमाम लोग बराबर हैं। सिर्फ ईमान एक ऐसी चीज है जिसकी बेस पर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से अफजल हो सकता है। दिलों के अंदर वो तक़वा जैसी चीज है जिसकी वजह से एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से अफजल हो सकता है। इसी साहबे कराम एक दूसरे को देखते थे और देखते थे फला बंदा नमाज बहुत पाबंदी के साथ पढ़ता है, इसी तरीके से सुन्नतें भी पढ़ता है, तो सोचता है कि मैं और ज्यादा पढ़ूंगा। कोई नवाफिल पढ़ता है तो सोचता है कि मैं और ज्यादा नवाफिल पढ़ूंगा ताकि मैं उससे ज्यादा मर्तबा हासिल कर लूं। लेकिन आज क्या होता है, आज देखते हैं फला बंदा काम इतना आगे निकल रहा है, हम भी आगे निकलेंगे। आज फला बंदा एक बिल्डिंग खड़ी कर लिया, हम 2 बिल्डिंग खड़ी करेंगे। मेरे भाइयों, आज हम दुनियादारी में तो आगे निकल रहे हैं, दुनियादारी में एक दूसरे से कॉम्पिटिशन तो कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए हम दीन के मामले में बहुत पीछे होते जा रहे हैं। दीन के मामले में बहुत ही ज्यादा पीछे हैं, जिसके सबब आज गैर मुस्लिम उठा रहे हैं, जिसके सबब आज दुनिया के अंदर जितने भी गैर मज़ाहिब के नॉन मुस्लिम हैं, वो लोग हमारे बिखरने का, मुंतशिर होने का फायदा उठाते हैं। और यही वजह है कि मुसलमान हमेशा परेशानियों से, मुसीबतों से दो चार होते हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, जरूरत क्या है कि हम नबी अलैहिस्सलाम के फरमान को मजबूती से पकड़ ले, अपने दाढ़ों से मजबूती से थाम ले, ताकि पूरी दुनिया भी मिल जाए तो हमें अपनी जगत से हिला न सके, हमारे ईमान को खरीद न सके। और एक मुसलमान को ऐसा ही होना चाहिए, एक मुसलमान को ईमान से मजबूत होना चाहिए कि कोई दूसरा शख्स उसे अपनी जगह से, अपने ईमान से हिला न सके। लेकिन आज होता क्या है, आज थोड़े से पैसे की हम बिक जाते हैं, थोड़े से पैसे अगर हमें मिलते हैं तो हम सूदी चीज खाने लगते हैं, सूदी कारोबार करने लगते हैं, बैंकों से निकलने वाले इंटरेस्ट को खाने लगते हैं। हालांकि अल्लाह के नबी ने फरमाया ये तमाम की तमाम चीजें हराम है। हम रमजान के दिनों में तो बहुत अच्छे से बचते थे, हराम चीजों से बचते थे, गीबत से बचते थे, चुगली से बचते थे, लेकिन जैसे ही रमजान खत्म हुआ हमने इन तमाम चीजों को छोड़ दिया। मेरे भाइयों, एक मुसलमान को ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मुसलमान को तो उस तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से रब्बुल आलमीन ने कहा। अगर हम रमजान के अंदर हकीकी मानो मोमिन बन रहे हैं तो हमें रमजान के बाद भी वैसा ही रहना है। वरना इस बात की याद रखिए, 1 महीना कुछ रहना, 2 महीने दूसरे महीने कुछ रहना और तीसरे महीने कुछ रहना, ये तो रियाकारी है, ये तो मुनाफिकत है, ये मुनाफिकों की आदत है कि अपने आप को बदलते रहना। मेरे भाइयों, ये दुनियादारी में तो चल जाएगा लेकिन दीन के लिहाज से नहीं चलने वाला है।
इसलिए अपने आप को बार बार चेंज न कीजिए, बल्कि अगर आपने दीन को अपना लिया, अगर आप नमाजी बन गए, नमाज पढ़ने वाले बन गए, तो फिर नमाज से फिर जाना, बल्कि तो इस बात याद है कि आप नमाज से इनकार कर रहे हैं, आप नमाज से छोड़कर फिर से नमाज से दूर जा रहे हैं, रब्बुल आलमीन से दूर जा रहे हैं। हम इस बात का तो रोना रोते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत मुसीबतों में घिरे हुए हैं, हमारी परेशानियां खत्म नहीं होती है, हमारे घरों के अंदर बीमारी नहीं जाती है। मेरे भाइयों क्यों? कभी आपने वजह तलाश की? कभी आपने ये सोचा कि हम ही सबसे ज्यादा परेशान क्यों हैं, हम ही सबसे ज्यादा मुसीबतों के मारे क्यों हैं? कभी आपने सोचा कि लोगों की निगाहें हमारे ऊपर ही क्यों रहती है, लोग हमें ही क्यों परेशान करते हैं? मेरे भाई इस बात को याद रखिए, जो अल्लाह का नहीं होता है दुनिया में किसी का नहीं होता। रब्बुल आलमीन कह रहा है कि तुम अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह को राजी कर लो, दुनिया वालों के दिलों में अल्लाह खुद ही मोहब्बत डाल देगा और तमाम के तमाम लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। लेकिन जब हमने खुद को रब से दूर कर दिया है, तो फिर हम किस बेस पर रब से ये उम्मीद करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी तमाम परेशानी भी दूर करे, हमें नेमतों से भी मालामाल करे, हम पर अल्लाह की रहमतें भी आए। मतलब हम ऐसे सोच रहे हैं कि हमें सब कुछ फ्री में मिले। आप एक मिसाल लीजिए, मिसाल के तौर पर आप किसी घर के या फिर किसी कारोबार के मालिक हैं और आपके नीचे काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, अब वो लोग काम न करें, बस वो लोग सोचे फ्री में हमें मालिक पैसा देता रहे। कि कोई भी काम कराने वाला कोई मालिक ऐसा करेगा? कभी नहीं करेगा, फौरन दूसरे दिन ही इसे निकाल के बाहर कर देगा। ये तुम काम ही नहीं कर रहा है, जब तुम मेरे अंडर में रह ही नहीं सकते, तो फिर तुम क्यों रुके यहाँ पर? लेकिन मेरे भाई इस बात की याद रखिए, रब्बुल आलमीन इतना रहम करने वाला है, अपने बंदों पे इतनी ज्यादा शफकत करता है कि अपने बंदों को अपनी जमीन से भगाता नहीं है। दुनिया के अंदर जितनी भी जमीनें हैं, तमाम की तमाम जमीनों पर अल्लाह की हुक्मरानी चलती है। रब्बुल आलमीन के ये जमीन है, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी दुनिया है। तो ये बताइए, हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे तो अल्लाह में दिख रहा है। अगर हम अल्लाह की नाराजगी मोल ले रहे हैं, तो समझ लीजिए जो तमाम कायनात का मालिक है, हम उसके गुलाम हैं। जो हम नाम रखते हैं अब्दुल्लाह, यानी अल्लाह के गुलाम, अल्लाह के बंदे। बंदा का मतलब क्या होता है? किसी के मातहत रहने वाला शख्स, किसी का गुलाम। हम दुनिया में जितने भी रहने वाले सब के सब अल्लाह के गुलाम हैं। वह अंतुमुल फुकरा, अल्लाह के तमाम के तमाम जितने भी दुनिया के अंदर रहने वाले हो, दुनिया के अंदर अमीर हो सकते हो, दुनिया के अंदर मालदार हो सकते हो, लेकिन मेरे नजदीक फकीर हो, मेरे नजदीक सबसे कमतर हो। क्योंकि दुनिया के अंदर जितनी भी खजाने हैं, आसमान में कितने भी खजाने हैं, सबका मालिक मैं हूँ। तो फिर हम अल्लाह से क्यों मोल ले रहे हैं दुश्मनी? हम अल्लाह से दुश्मनी मोल ना ले। इस बात को याद रखिए, अगर हम नमाज नहीं पढ़ रहे, हम सोच रहे हमारा काम ज्यादा होगा, तो नहीं, रिस्क देने वाली जात अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो फिर हम अल्लाह को छोड़कर अब किधर जा रहे हैं? अल्लाह कह रहा है कि रिस्क का मालिक मैं हूँ, जो हमारे किस्मत का पन्ना है, जो हमारे तकदीर का लिखा हुआ है, वो रब्बुल आलमीन के हाथों में। अल्लाह जिसकी चाहे तकदीर लिख दे, जिसकी चाहे मिटा दे, जिसकी चाहे अच्छी कर दे, जिसकी चाहे बुरी कर दे। अगर अल्लाह ने लिख दिया है कोई शख्स एक दिन में 1 रुपया कमाएगा, तो उससे 1 रुपया ज्यादा अठन्नी भी नहीं कमा सकता, उससे ज्यादा। तो फिर हम क्यों अल्लाह से दुश्मनी मोल ले रहे हैं? याद मेरे भाइयों, अल्लाह से दुश्मनी मोल ना ले, बल्कि रब के फरमान पर लब्बैक कहे, नमाजों को पढ़े, रब की इबादत करे, और फिर देखे कैसा करिश्मा होता है, किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको माल और दौलत के खजाने देता है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह कह रहा है कि हम तुम्हें ऐसी जगह से रिज़्क़ देंगे गुमान भी नहीं कर सकते। याद है मेरे भाइयों, हम लोग किधर बात कर रहे थे कि तुम एक दूसरे हसद ना करो, रमजान के बाद भी हसद ना करो, भूख न रखो, धोखा न दो, इसी तरीके से किसी को हकीर ना जानो। क्यों? क्योंकि दुनिया में किसी को किसी पर फजीलत नहीं है। और इसकी मिसाल देते हुए अल्लाह के लिए फरमाया, मसल मुमिनीना फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुबिहिम मसल जसद। कि एक मोमिन को कैसा होना चाहिए? अल्लाह के नबी कहते हैं, मोमिन इंसान को एक दूसरे के साथ हमदर्दी, मोहब्बत, शफकत और आजिजी के तौर पर है, एक दूसरे से मोहब्बत करने में है, एक जिस्म की तरह। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से हमदर्दी, मोहब्बत, शफकत, रहमत करने में एक जिस्म के मानंद है कि अगर जिस्म के किसी एक हिस्से में दर्द महसूस हो, तमाम जिस्म बदन दर्द करने लगता है। उसी तरीके से अगर किसी एक मुसलमान को दर्द हो, किसी एक मुसलमान की परेशानी हो, तो तमाम मुसलमान को उसकी परेशानी समझनी चाहिए। तो इसीलिए अल्लाह से बताना चाहते हैं, तो किसी से दुश्मनी रखकर, किसी को तकलीफ देकर, किसी की गीबत और चुगली कर
कर अपने आप को गुनाह में मत डालो और अल्लाह के नबी के इस फरमान के खिलाफ न करो। कि अल्लाह के नबी तो बतलाते हैं एक मोमिन दूसरे मोमिन ये हमेशा हमदर्द रहता है, मोहब्बत करने वाला होता है। तो फिर बताइए अगर हम उससे हसद करते हैं, उसकी ग़ीबत करते हैं, उसकी चुगली करते हैं और इसी तरीके से उससे बुग़्ज़ और अदावत और दुश्मनी पालते हैं, तो इस बात की याद रखिए हम नबी के फरमान के खिलाफ करते हैं। ये सारी चीज अपना लेना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ है और अल्लाह के ने रमजान के अंदर भी इससे मना किया था और रमजान के बाद वही फरमान आज भी है और जिंदगी भर से रहेगा। और इस बात को याद रखिए कि अगर हम लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ वर्जी करते हैं, हसद जलन रखते हैं, एक दूसरे की ग़ीबत करते हैं, चुगली करते हैं और एक दूसरे को भुगतान बांटते हैं, दूसरे को पर आयत कराजी करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान सुन लीजिए और सुनिएगा मेरे माँ बहने की सुने। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, फरमाते हैं लम्मा उरिका बी मररतु बिक़ौमिन लहुम अज़फ़ार मिन नुहासिन यख़मिशून वुजूहहुम व सुदूरहुम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब मुझे मेराज कराई गई, जब अल्लाह के नबी मेराज के लिए गए, जब नमाज फर्ज करने के लिए, जब नमाज फर्ज होने वाली थी तब अल्लाह के नबी मेराज कराई गई, आसमानी दुनिया पर कराया गया। तो अल्लाह के नबी जब जहन्नम और जन्नत दिखाया गया, अल्लाह के नबी क्या देखते हैं मरद बिक़ौमिन लहुम अज़फ़ार, एक ऐसे कौम को वहां पर देखा कि जिनके नाखून जो थे, जिनके नाखून तांबे के थे, यख़मिशून वुजूहहुम व सुदूरहुम, जिसके नाखून तांबे के थे, जितने भी लोग हैं एक ऐसे कौम के पास से गुजरे जिनके तमाम लोग नाखून तांबे के थे और उन तांबे के नाखूनों से अपने चेहरों को, अपने सीनों को नोच रहे होते हैं, घपोट रहे होते हैं, अपने चेहरों और सीनों को इस तरीके से जख्मी कर रहे होते हैं। अल्लाह के नबी देख बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अल्लाह ने पूछते हैं फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी कहते हैं कि ऐ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, आखिर ये कौन लोग हैं, आखिर इनका गुनाह किया है, कौन सा ऐसा इन लोगों ने जुर्म किया है कि ये लोग खुद अपने आप को इस तरीके से आजाद दे रहे हैं कि ये जो नाखून होता है हम लोग के नाखून, इससे इतनी जबरदस्त तकलीफ होगी अगर इंसान अपने चेहरों को नोच दे। तो बताइए तांबे का नाखून है जिससे अपने चेहरों को, अपने सीनों को जख्मी कर रहे हैं, इसलिए आगे सुनिए अल्लाह ने क्या फरमाते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बताते हैं यअकुलूना लुहूमन नास व यक़ऊना फी आरादिहिम, ये ऐसे लोग हैं जो अपने दूसरे मुसलमान भाई का गोश्त खाते हैं। गोश्त खाते हैं कि मतलब यानी कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान ही का ग़ीबत कर रहा है, एक मुसलमान होकर दूसरे की चुगली कर रहा है, उसकी गैर मौजूदगी में उसको तकलीफ देने वाली बात कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोग बात क्या फरमाते हैं, ऐसे लोग क़यामत के दिन अपने चेहरों को तांबे के नाखून से किए जाएंगे, चेहरों को नोचेंगे, जख्मी करेंगे, सीनों को नोचेंगे, जख्मी करेंगे। किन लोगों के बारे में कही जा रही है? जो लोग ग़ीबत करते हैं, जो लोग चुगली करते हैं। आगे क्या फरमाया वयक़ऊना फी आरादिहिम, ये ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे की इज्जतों को दागदार करते हैं, जो एक दूसरे की इज्जतों को उठाते हैं, एक दूसरे के सामने बेइज्जती करते हैं, मजाक बनाते हैं। ऐसे लोग अल्लाह ने फरमाया ऐसे लोग क़यामत के दिन जहन्नम में तो जाएंगे ही, साथ ही जबरदस्त तरीके से इनको अज़ाब किया जाएगा। ये लोग खुद अपने आप को इस तरीके से तकलीफ देंगे जो कि बर्दाश्त से काबिल नहीं होगा। दुनिया के अंदर हल्का सा चेहरे के ऊपर जो चेहरा बहुत ही नाजुक है, हल्का सा खरोच लग जाता है, दर्द करने लग जाता है, इंसान से मलहम पट्टी लगाता है, तो जरा सोचिए क़यामत के दिन तांबे का नाखून दिया जाएगा, एक ही बार में चेहरा खत्म हो जाएगा। तसव्वुर कीजिए क्या हाल होगा उस वक्त। और जिस चेहरे पे इंसान सबसे ज्यादा वक्त लगाता है, उसको चमकाता है, उसपे तरह तरह की चीजें लगाता है ताकि मेरा चेहरा खूबसूरत है, मैं अच्छा दिखूं, इसी चेहरे के बारे में अल्लाह ने फरमाया है इन चेहरों को इंसान जख्मी कर देगा। और सिर्फ यही नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में फरमाता है जो लोग मुखालिफत करते हैं, जो रब की नाफरमानी करते हैं और कुफ्र करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में कुरान कहता है यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार यक़ूलूना या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूला। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये कौल सूरह अहज़ाब के नाम देख सकते हैं। अल्लाह फरमाता है कि जिनके चेहरे को क़यामत के दिन जहन्नम के अंदर इस तरीके से उलट पलट किया जाएगा, इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। जिस जहन्नम का आग दुनिया के आग से कई गुना ज्यादा होगा, जो बहुत ही ज्यादा गर्म होगा, खौलता हुआ होगा, उसके अंदर इंसान के चेहरे जो बहुत ही नाजुक, बहुत ही हसास
साथ बहुत ही नर्म मुलायम होता है उसके बारे में अल्लाह मिसाल देते हुए कह रहा है कि जिस चेहरे को सबसे ज्यादा वक्त देते हो, चमका कर रखते हो, वक्त लगाते हो, और जिस तरह औरतें मेकअप कर करके उसको खूबसूरत बनाने में लगी रहती हैं, ऐसे तमाम औरतें, ऐसे तमाम मर्द जो रब की नाफरमानी करते हैं उनके साथ ये मामला किया जाएगा। एक मिसाल देता हूँ कि जहन्नम के अंदर इंसान के चेहरे को उलट पलट किया जाएगा। किस तरीके से? जिस तरीके से अभी के दौर में एक इंसान फ्राई बनाता है मुर्गे को उलट पलट करके उसको अच्छी तरीके से तलता है, तो इसी तरीके से जहन्नम के अंदर रब्बुल आलमीन कह रहा है कि उलट पलट किया जाएगा, चेहरों को भून दिया जाएगा, फिर नार यक़ूलून या लैतना, जहन्नम की आग में बुरी तरीके से चल जाएगा। और वला यानी इसी तरीके आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर उसके बाद इंसान अफसोस करेगा, खुद को मलामत करेगा, या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूला, ऐ काश के मैं अल्लाह के रसूल की इताअत कर लिया होता, ऐ काश के मैंने दुनिया में नफ़्स की जिंदगी न गुजारता, मैं दुनिया के अंदर रहकर अल्लाह की फरमाबरदारी कर लेता तो आज मैं इतनी आजाद मुब्तला न होता। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जरा गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें पहले ही बता रहा है, क्यों? ताकि हम अल्लाह की नाफरमानी से बच जाए, नमाज को छोड़ने से बच जाए, रब की नाफरमानी करने से बच जाए, नफ्स परस्ती करने से बच जाए। मेरे भाइयों, अगर हम तमाम चीजों में लगे रहते हैं और अल्लाह से दूर हो जाते हैं, इस बात को याद रखिए, हमारे साथ बहुत ही बुरा मामला होने वाला है। और एक मतलब इंसान जहन्नम में चला जाए तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसके अंदर जाने के बाद इंसान को कभी मौत नहीं आएगी, इंसान वहां मरेगा नहीं, बल्कि इंसान का जिस्म जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, फना हो जाएगा। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर से एक नया जिस्म तैयार कर देगा, जर्रा बराबर भी, ताकि उसके अंदर अजाब को चखने का मात्रा कम न हो, उससे बराबर उसी तरीके से अजाब मिलता रहे, ताकि जो दुनिया में रब की नाफरमानी को मजा दिया करता था, इसी तरीके से आखिरत में उसे भी मजा दिया जाए। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए आज ये आहद कीजिए कि हम इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये आहद कर लीजिए कि इंशाअल्लाह हम रब की नाफरमानी नहीं करेंगे। आहद कर लीजिए कि हम इंशाअल्लाह गीबत, चुगली और इसी तरीके से दुनिया में कितने किस्म की ऐसी चीजें पाई जाती है जिससे हमारा रब नाराज होता है, तो सारी चीजों को छोड़ दीजिए और नमाज को पाबंदी से पढ़ लीजिए, क्योंकि नमाज एक वाहिद ऐसी चीज है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, इन्ना सलात तनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर, कि नमाज ऐसी चीज है कि अगर इंसान इसको अपना ले और इसको मजबूती से थाम ले तो इंशाअल्लाह कभी भी वो बुराई से करीब नहीं पहुंच सकता। ये अलग बात है, जो लोग बहुत से लोग कहते हैं कि हम नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन फिर भी गुनाह से करीब जाते हैं, तो इस बात की याद रखिए, हमारी नमाजों में कमी है, हमारे खुशू में कमी है, जिसके सबब हम गुनाह के करीब जा रहे हैं। अगर हम खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ, रब की फरमाबरदारी की नीयत से, सवाब की उम्मीद से पढ़ते हैं और इसी तरीके से नेकी करते हैं, तो इंशाअल्लाह हम गुनाह के करीब भी नहीं भटक सकते, हम बुराइयों के करीब भी नहीं भटक सकते। ये रब्बुल आलमीन का वादा है, ये अल्लाह का वादा है। और अल्लाह कह रहा है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता है। अल्लाह ने कह दिया कि अगर तुम नमाजी बन जाओ तो हम तुम्हारी जिंदगी अच्छी कर देंगे, अगर तुम नेक करने वाले बन जाओ, नेकी के काम करने लग जाओ, तो हम तुम्हारी जिंदगी बहुत बेहतर बना देंगे। मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। लोग तो बहुत कहते हैं कि अल्लाह तुम्हें हमें अच्छी जिंदगी अता कर दे, हमें सुकून वाली जिंदगी अता कर दे। अल्लाह वादा करे इस आयत करीमा में, बहुत सुनिएगा, अल्लाह कहता है, मन आमिल सालिहन, जो भी शख्स नेक काम करता है, चाहे वो मर्दों में से हो चाहे वो औरतों में से हो, कोई भी शख्स हो, अगर अच्छा अमल करता है, नेक काम करता है, तो अल्लाह का यह वादा है कि हम उन्हें ऐसी पाकीज़ जिंदगी देंगे, अच्छी जिंदगी अता करेंगे जो खुश हो जाएगा, आखिरत में भी जन्नत जैसी अजीब नेमत का वादा है। तो मेरे भाइयों, रब्बुल आलमीन से ये अहद कर लीजिए कि इंशाअल्लाह हम बुराइयों को छोड़ देंगे। आखिर में अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह तो हम सबको गुनाहों से बचा ले, अल्लाह तो हमारे गुनाहों को बख्श दे, अल्लाह तो हमारे रमजान के रोजों को कबूल फरमा ले, अल्लाह तो हम सबको उसी तरीके से इबादत करने की तौफीक अता फरमा जिस तरीके से हम रमजान में इबादत करते थे। अल्लाह तो हमारे मुसलमान भाइयों की हालत को दुरुस्त फरमा, अल्लाह हमारे फलस्तीनी भाई जहाँ भी परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे, अल्लाह दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचा,
अल्लाह हमारे इंडिया के अंदर हमारे मुसलमान जिस परेशानी से जूझ रहे हैं उनको उससे निकाल दे। अल्लाह ये सियासत जो हम मुसलमानों की मसाजिद मदारिस को छीनने में है, हमारी मसाजिद को जगहों पर कब्जे में लगाए हुए हैं, वक्त वोट जैसे बिल को पास करके हम मुसलमानों को उनकी जगहों से दूर करना चाहते हैं, उनकी इबादत गाहों से दूर करना चाहते हैं। अल्लाह तो उनकी साजिशों को नाकाम करते हैं। अल्लाह तो हम सबको इस दुनिया के अंदर हकीकी मानो में मोमिन बंदा बनकर रहने वाला बना दे। अल्लाह तो हम सबको जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उनके दिलों में पंजों से नमाज पढ़ने की आज कायम कर दे। अल्लाह हम सब के अंदर वो ईमान वो जज्बा पैदा कर दे जिस तरीके से सहाबे कराम के अंदर था। अल्लाह हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां पनप रही हैं, हमारे जितने भी गुनाह होने वाले हैं, उन सब से हमको दूर कर दे। अल्लाह तो हम सबको जब से इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख और माफात ना हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो। आमीन।